بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ خوب انٹرٹین ہوں گے، اور یہ واقعے کو سن کر آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ بیوی امید سے تھی اور جلد ہی وہ روز آ گیا کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بچے کی رونے کی آواز آتے ہی دائی نے سر اٹھا کر عورت کو مبارکباد دی۔ دائی نے اسے بتایا کہ مبارک ہو، تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دائی کی بات سن کر عورت کے نقاہت زدہ چہرے پر بے مثال خوشی بکھر گئی۔ یہ اس عورت کی پہلی اولاد تھی جو اللہ نے کئی برس کے انتظار کے بعد اس کی جھولی میں ڈالی تھی۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ بچہ ابھی دائی کے ہاتھوں میں تھا۔ ننھا منھا سا شہزادہ، لاؤ اسے میری گودی میں دے دو، یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا بیٹا شہزادہ جیسے زندگی بسر کرے گا۔ عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے بڑھانے لگی۔ دائی ماں اس کے جذبات سمجھ گئی تھی، یہ تو اس کا روز کا کام تھا۔ اس نے ہر دفعہ پیدائش پر بچے کی ماں کو جذبات سے بوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ اس ماں کی یہ بات سن کر وہ دبے انداز میں مسکرا دی۔ ایک مچھواڑے کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو وہ شہزادہ گردان رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر شہزادہ جیسے زندگی بسر کرے گا۔ مگر ماں کے دل کی کس کو خبر تھی، اور وہ دائی یہ نہیں جانتی تھی کہ جس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر رہی ہے اس کا مستقبل کس قدر حیران کن ہے۔ عورت نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں بھر لیا، اسے چومنے لگی۔ وہ بار بار اسے میرا شہزادہ کہہ کر پکار رہی تھی، مگر بدقسمتی سے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ اپنی ماں کے بالکل الٹ تھا۔ پکار تو اس کی ماں شہزادہ رہی تھی، لیکن اس کی قسمت بالکل پھوٹی ہوئی تھی۔ گہری سانولی رنگت اور ننھا سا بچہ جسے اس کی ماں نے ناصر نام دیا تھا، آنے والے وقت میں زمانے کے بےرحم ہاتھوں میں پٹتا رہا۔ باپ مچھواڑا تھا، بڑی مشکل سے چند مچھلیاں پکڑ لاتا جنہیں بازار جا کر بیچتے، جس سے وہ مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھا پاتے تھے۔ ناصر پڑھنا چاہتا تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی شدید خواہش تھی، مگر یہاں تو روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہاں تعلیم کیا معنی رکھتی ہے۔ ناصر بھی چند سال اسکول جا کر اپنے باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے جانے لگا۔ بدقسمتی سے ناصر کا باپ بھی چند سال ہی زندہ رہا اور اس کے بچپن میں ہی چل بسا، اور پیچھے بیوہ ماں کے ساتھ ناصر تنہا رہ گیا۔ ناصر کی ماں ہمت والی عورت تھی، وہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کا پیٹ پالا کرتی تھی، مگر شدید محنت اور غذائی قلت نے رفتہ رفتہ ناصر کی ماں کو بھی شدید بیمار کر دیا۔ ناصر کی ماں کو چارپائی پر پڑا کھانستا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس روز اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خوابوں کی قربانی دے کر اپنے باپ کے پیشے کو مکمل طور پر اپنا لے گا اور ماں کو نہیں کام کرنے دے گا۔ اس دن کے بعد ناصر روزانہ جال اٹھا کر مچھلیاں پکڑنے جاتا۔ دن گزرتے گئے، مہینوں سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ آخرکار ناصر بڑا ہو گیا۔ وہ بڑا ہو کر ایک ماہر مچھواڑا بن گیا اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے لگا۔ وہ اچھا کما لیتا تھا۔ اس کی مچھلیاں بازار میں فروخت کرنے پر اسے اتنی آمدنی آ جاتی کہ وہ اپنا اور اپنی ماں کے اخراجات کو اٹھا لیتا۔ لیکن اس کی شادی کی عمر ہو چلی تھی، وہ اب تک تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں کو یہ بالکل اچھا نہ لگتا۔ ناصر کی ماں کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اس نے اپنے آس پڑوس میں اور رشتہ داروں میں ناصر کی شادی کے لیے بات چلانا شروع کر دی۔ وہ جہاں کہیں خوبصورت لڑکی دیکھتی جھٹ سے ناصر کا رشتہ لے پہنچتی، مگر اس معاملے میں بھی ناصر کی قسمت پھوٹی تھی۔ اس کی سیاہ رنگت اس کے راستے میں حائل ہو جاتی۔ پکی رنگت اور معمولی سے نقوش کو دیکھ کر لڑکی کے والدین کو ناصر ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اگر ناصر کے پاس خوب مال دولت ہوتی تو شاید اس کے اس عیب پر پردہ ڈل جاتا۔ کہنے لگا، ماں کیوں در بدر پھرتی ہو میرے لیے؟ تم ہی کافی ہو، مجھے نہیں کرنے کوئی شادی۔ کیا جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی، کیا وہ زندہ نہیں رہتے؟ اور میرے پاس ماں جیسی دولت ہے تو مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ناصر اپنی ماں کا دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر تو اس نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ اٹھتے بیٹھتے ماں کو شادی کے لیے انکار کرتا۔ لیکن ناصر کی ماں کہتی، بیٹا میری آنکھیں بند ہو گئی نا، میں تو دنیا سے چلی جاؤں گی، تیرا کیا بنے گا؟ تو کیسے اپنا گزر بسر کرے گا؟
तुझे भी तो जीवन साथी की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ तुझे भी एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नासिर के नसीब में अभी और आजमाइश दर्ज थी। एक रोज जब वह मछलियां बाजार में फरोख्त करके घर वापस आया तो उसे सेहन में मां नजर न आई। उसने कई बार मां को आवाजें दी लेकिन कोई जवाब न मिला। नासिर परेशान होकर अम्मा की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, मगर वह घर में कहीं नहीं थी। नासिर ने पूरा घर छान मारा। आखिर जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। बाथरूम में नासिर की मां जमीन पर बेहोश पड़ी थी। नासिर लपक कर अपनी मां तक पहुंचा। उसने घबराकर मां के गाल थपथपाया और उनके चेहरे पर पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की, मगर गहरी बेहोशी में थी। नासिर जल्दी से उठा और कमरे के अंदर लेकर आया। वो उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद जब अम्मा होश में न आई तो नासिर उन्हें उठाकर करीबी अस्पताल ले गया। बहुत सारे टेस्ट उनके हुए और इस टेस्ट से पता चला कि नासिर की मां को कैंसर है। नासिर का तो दिमाग फिक्र से फटने लगा। उसके पास कैंसर का इलाज कराने के लिए रकम न थी। वह जानता था यह मौजी मर्ज है। नासिर से जितना भी हो सका उसने अपनी मां का इलाज करवाया, लेकिन नासिर इतनी मछलियां नहीं पकड़ पाता था कि उसको बेचकर उसकी मां का किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज हो सके। आखिरकार उस मौजी मर्ज से लड़ते लड़ते नासिर की मां जिंदगी की जंग हार गई और एक रोज वो चुपके से वफात पा गई। नासिर बेचारा पर यह गम पहाड़ की तरह टूट पड़ा। वो अपनी मां को बुला नहीं पा रहा था। अपनी मां के गम में हर वक्त रोता रहता। अब तो उसने अपने घर को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके घर में नासिर को अपनी मां बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी और वह वही घर नासिर को काटने के लिए दौड़ता था। रफ्ता रफ्ता नासिर का दिल घर से उचाट होने लगा। वह पहले ही दुनिया से बेजार था। एक माँ ही तो थी जिससे वह दिल की बात कह लिया करता था। रिश्तेदारों ने तो बहुत अरसा हुआ उससे मिलना जुलना भी छोड़ दिया था कि कहीं नासिर को रिश्ता ना देना पड़ जाए। वह वहीं सारा दिन दरिया के किनारे बैठा मछलियां पकड़ता रहता। जाल में जितनी भी मछलियां आती वह शाम में जाकर उन्हें फरोख्त करता। जो पैसे मिलते उसके से अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान ले आता और फिर से दरिया किनारे जाकर पड़ जाता। क्या अल्लाह ने उसे इतना ही बेमकसद पैदा किया था? कभी कभी उसे अल्लाह से शिकवा भी पैदा होता, लेकिन वह अपना सर झटककर अल्लाह से माफी मांग लेता। वह नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसके लिए क्या तोहफा छुपा हुआ है। एक दिन नासिर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने के लिए गया। वहां बाजार में सब लोगों ने मछुआरों को मशवरा दिया कि मियाँ कब तक तुम अकेले ही जिंदगी गुसर बसर करोगे, तुम कहीं शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन नासिर मछुआरा चुपचाप उनकी बातें सुनकर वापस लौट आता। ऐसे ही बोझल दिनों के बीच एक रोज नासिर अपनी खरीदी हुई मछलियां बाजार में बेचकर और लोगों की बातें सुनकर घर वापस लौट रहा था। उसके साथ एक अजीब गरीब वाकया पेश आया। वह दरिया के किनारे अपनी पगडंडी तक आने लगा तो दरिया के किनारे उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह दुनिया से बेगानी लग रही थी। यूं लगता था उसे देखकर जैसे दरिया के लहरों के जोर ने उसे दरिया से बाहर उछाल दिया गया है। उसका लिबास गीला था। नासिर यह मंजर देखकर दंग रह गया। दरिया किनारे इस वक्त और कोई भी न था। तमाम मछलियां बाजार में बेचने के बाद सारे लोग अपने घरों को जाया करते थे। सिर्फ एक नासिर ही था जो लावारिस था और वह दरिया के किनारे पड़ा रहता था। उस दरिया के किनारे पड़ी लड़की पर इसकी नजर सिर्फ नासिर की ही पड़ी। नासिर ने बेख्तियार आगे बढ़कर उस लड़की का जायजा लिया। वह नौजवान और बेहद खूबसूरत थी। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। नासिर ने लड़की को उल्टा करके उसकी कमर पर दबाव डाला। लड़की के हलक में अटका हुआ बहुत सा पानी बाहर निकल गया, मगर लड़की फिर भी होश में न आई। नासिर ने उस लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारे और बैठकर उसे होश में लाने का इंतजाम करने लगा। उससे यह इत्मीनान था कि वह लड़की जिंदा है। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। वो होश में आ रही थी। नासिर चौकन्ना होकर बैठ गया। लड़की ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा और बेख्तियार जमीन से उठ बैठी। वह परेशान नजर आ रही थी। जैसे उसकी नजर अपने करीब बैठे नासिर पर पड़ी, वो तो एकदम डर सी गई और जल्दी से पीछे हटने लगी। मगर नासिर ने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी जानिब से कोई खतरा नहीं। तुम मुझे यहाँ दरिया के किनारे पड़ी हुई मिली। मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है?
नासिर सवालिया नजरों से उस लड़की की जानिब देख रहा था जो फटी फटी आंखों से नासिर को तके जा रही थी। अचानक उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू जमा होने लगे और नासिर के देखते ही देखते वह फूट फूट कर रोने लगी। नासिर हक्का बक्का रह गया था। उसे कुछ कहने की कोशिश की लेकिन तभी वह रुक गया। लड़की जाड़ो कत्ता रोते हुए सिसकियों के बीच में कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नासिर ने सुना कि वह कह रही थी, मेरी माँ दुनिया से गुजर चुकी है और मेरा सौतेला बाप मुझ पर बहुत जुल्म करता था। मैं लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपने बाप को नशे के लिए पैसे कमा कर देती थी और फिर भी मेरा बाप मुझ पर इतना तशद्दुद करता था जिसे बताना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज तो मेरे बाप ने हद कर दी। जैसे ही मैं काम करके घर लौटी वह मुझे मारने पीटने लगा। मुझसे यह सब बर्दाश्त ना हुआ तो मैं घर से भाग निकली। मेरे बाप ने भी मेरा काफी पीछा किया लेकिन मैं भागते भागते समुंदर के किनारे आ गई। मैं बुरी तरह से थक चुकी थी, मेरी सांस फूल रही थी, मुझ में मजीद भागने की ताकत न थी। ना जाने कब मैं बेहोश हुई और यहाँ समुंदर के किनारे गिर गई। शायद मुझे लहरों ने भिगोकर मेरा लिबास गीला कर दिया। बेहोश होने से पहले मैंने अपने पास किसी को नहीं देखा था, मगर अब जब आंख खुली तो तुम मेरे सामने हो। न जाने अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे। मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। लड़की की आवाज फिर से आंसुओं में गुम हो गई। वह शदीद खौफजदा नजर आ रही थी। यकीनी तौर पर वह मर्द जात से बेहद घबराई हुई थी। नासिर के लबों पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ गई। उसे यह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। वैसे भी वह अकेला था, उसे एक हमसफर की जरूरत थी, लेकिन उसकी फितरत बहुत अच्छी थी। वह एक शरीफ इंसान था, इसलिए जब वह बोला तो इसके अल्फाज ने लड़की को हैरान कर दिया। वह कह रहा था, तुम परेशान न हो, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ और तुम्हारी तरह मेरा भी कोई सहारा नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई घर नहीं। लेकिन नासिर मछुआरा दिल ही दिल में उस लड़की पर फिदा हो चुका था। वो लड़की नासिर को अच्छी लगने लगी थी। लड़की को भी सहारे की तलाश थी। वह तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो घर जहाँ उसकी माँ का इंतकाल हो गया था वह दोबारा कभी नहीं गया था। वह घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उसे खुशी महसूस हुई। आज उसकी माँ की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उसकी जिंदगी में भी कोई औरत आ चुकी थी। फिर कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा तो एक दिन नासिर मछुआरे ने उस लड़की से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर ले तो हम मियाँ बीवी बनकर जायज रिश्ते में बंध जाएंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लड़की भी मछुआरे से शादी करने पर राजी हो गई और फिर उन दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात नासिर बेहद खुश था। इसकी मामूली शक्ल और सूरत के बावजूद अल्लाह ने बेहद हसीन हमसफर उसे अता किया। उसकी दुल्हन कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, मगर एक अजीब सी बेचैनी जो नासिर को अपने घेरे में ले रही थी। नासिर बार बार अपना हाथ मसल रहा था। वह जो कुछ अपनी बीवी से कहना चाहता था उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर दिल बड़ा करके कमरे का दरवाजा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। सुर्ख जोड़े में उसकी दुल्हन मुसहरी पर बैठी थी। नासिर आगे बढ़कर उसका घूंघट उठाया तो वह शर्मा गई। नासिर उसके शर्माने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह लड़की बहुत खुश थी। तभी नासिर ने उसकी सारी खुशी चकनाचूर कर दी। नासिर ने उसे मुखातिब किया और बोला, अपनी शादी से मैं बेहद खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझे औलाद की खुशी नहीं चाहिए। मैं बाप बनना नहीं चाहता और इस सिलसिले में तुम कभी मुझसे बहस मत करना। तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा और मेरे साथ तुम्हें भी औलाद की ख्वाहिश को अपने दिल से खत्म करना होगा। क्या तुम्हें मेरी बात मंजूर है? नासिर ने अपनी बीवी की आंखों में देखा। वह यह बात सुनकर हैरान परेशान नासिर को देख रही थी। वह देख रही थी कि उसका शौहर उससे क्या कह रहा है। औलाद जैसी नेमत जिसे हर शख्स अल्लाह से गिरगिरा कर मांगता है। मगर उसने नासिर को कुछ ना कहा और खामोशी से अपना सर हिला दिया। वह भी अपने शौहर की रजामंदी पर खुश हो गई। लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि वह लड़की हामला हो गई। यूं ही उसे अपने वजूद में एक नई जिंदगी की परवरिश पाने का पता चला तो वह बेहद परेशान हो गई। नासिर ने महसूस कर लिया कि मेरी बीवी आजकल खामोश रहने लगी है। उसने कई बार पूछा मगर उसकी बीवी ने उसे कोई जवाब ना दिया। क्या बताती जिस चीज से नासिर ने उसे मना किया था, अल्लाह की करनी से वह हुक्म पूरा हो गया है।
मगर यह छुपाने वाली बात तो ना थी। हजार कोशिशों के बावजूद भी आखिर वह वक्त आ गया जब को इस बात का इल्म होने वाला था कि वह बाप बनने वाला है। शुरू के महीने में तो लड़की ने अपने शौहर को यह बात ना बताई, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ यह पता चल गया। अब उसे अंदाजा हो गया अब नासिर से यह बात छुपानी नामुमकिन है। तो उसने एक रोज खामोशी से नासिर को बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नासिर ने यूं सुना तो गोया उसे अपने कानों पर यकीन ही न आया। उसने बेख्तियार अपनी बीवी से पूछा कि यह क्या कह रही हो। बीवी ने शदीद घबराते हुए उसे एक दफा फिर बताया, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाजने का फैसला कर लिया है। नासिर का जी चाहा वो अपना सर दीवार से दे मारे और उसे शदीद तैश आ रहा था। वो औलाद का ख्वाहिशमंद बिल्कुल ना था। फटी फटी आंखों से वह अपनी बीवी को देखता रहा जो उसे अब बता रही थी, जब वक्त उसके हाथ से बिल्कुल निकल चुका था और माह गुजर चुके थे। नासिर जानता था अब वह उसे आने वाली जान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह इस बात से बहुत खफा हुआ और कहने लगा, हम खुद का पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, इस आने वाले बच्चे का हम कैसे पेट पालेंगे। इसलिए मैंने तुझे कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बनना चाहता हूँ। अब अल्लाह पाक इंसान को बच्चा देता है तो उसका रिस्क भी उसके साथ ही भेजता है। तुम फिक्र ना करो, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो अपना रिस्क अपने साथ ही लेकर आएगा। नासिर गुर्बत के हाथों शदीद परेशान था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जमीन पर पटका और घर से बाहर निकलता चला गया। इसके बाद वक्त गुजरता गया और उस लड़की ने एक बेटी को जन्म दिया। नासिर को अपनी बीवी की फिक्र थी। वह बेचैन होकर कमरे में टहल रहा था। जिस वक्त दाई ने बाहर आकर उसे इत्तला दी कि वो एक बेटी का बाप बन गया है, नासिर हक्का बक्का रह गया। उसके दिल में खुशी की लहर बेदार ना हुई, बल्कि उसे शदीद ताज्जुब हुआ। उसने एक शाखी नजर आसमान पर डाली। वो नहीं चाहता था और अल्लाह ने उसे औलाद दे दी तो दी भी तो ऐसी औलाद जिसकी भारी जिम्मेदारी थी। वह जानता था बेटियों की पैदाइश और फिर उनकी शादी करने तक बहुत से खर्चे हैं, उसे पूरा करना है। नासिर के बस की तो बात यह न थी। नासिर की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। दाई ने गुलाबी से कंबल में लिपटी हुई वो नन्ही सी परी नासिर तक बढ़ाई। नासिर ने दोनों हाथ पीछे कर लिए। उसे इस नन्हे से वजूद से नफरत हो रही थी। नासिर की स्याह रंगत और मामूली नक्श के बावजूद उसकी बेटी बेहद हसीन थी, लेकिन ना जाने मछुआरे के दिल में क्यों रहम न आया। बाप की नफरत देखकर वो नन्ही बच्ची परवरिश पाने लगी। नासिर की बीवी अब नासिर की आदतों से सख्त परेशान हो रही थी। अब नासिर को चाहिए था कि वह खुले दिल से उस औलाद को कबूल करे। फिर वह घर आते के साथ ही खाना खाता और सो जाता। यह वक्ती तौर पर ऐसा कर रहा है, उसकी यह बीवी सोचती। रफ्ता रफ्ता नासिर के दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत जाग ही जाएगी। मगर वो बेवकूफ थी। वो नहीं जानती थी कि नासिर ने अपने दिल में क्या मंसूबा बना रखा है। न जाने कब नासिर की शराफत शैतानियों में बदल गई। उसकी बीवी को पता तक ना चला। एक रोज रात का वक्त था। मछुआरी की बीवी और बेटी सो रही थी। नासिर की बीवी ने नन्ही सी बेटी को अपने बराबर में लिटा रखा था। वो दिन भर की थकावट से चूर बेखबर नींद सो रही थी। नन्ही बेटी भी जमाने भर की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए ख्वाब की दुनिया में मगन थी। अब नासिर अपनी चारपाई से उठा और दबे कदमों से चलता हुआ अपनी बीवी की चारपाई के पास आकर खड़ा हो गया। वह सुर्ख निगाहों से अपनी बेटी को घूर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर अपनी सोई हुई बेटी को उठाया और उसे अपनी चादर में छुपा लिया। बच्ची जरा सी कसमसाई, मगर फिर बाप की आगोश में सो गई। चांद की रोशनी में नासिर बच्ची को लेकर घर से निकल गया। उसका रुख दरिया की जानिब था। उसके दिल में शैतानियां भर चुकी थी और वह पत्थर का हो चुका था। रात के आखिरी पहर में नासिर समुंदर के पास पहुंचा। समुंदर ठाठे मार रही थी, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, मगर नासिर का दिल एक पल के लिए भी ना हिला। उसने अपनी चादर बेटी के ऊपर से हटाई और उस नन्हे से वजूद को पूरे कुव्वत के साथ समुंदर की लहरों में फेंक दिया। नासिर चंद लम्हे तक समुंदर की सतह को घूरता रहा और फिर खाली हाथ वापस घर आकर सो गया, जहां उसकी बीवी अभी तक बेखबर नींद सो रही थी। नासिर खामोशी के साथ अपनी चारपाई पर जाकर सो गया। जब सुबह हुई नासिर की बीवी जाग उठी। उसने बेख्तियार ही अपने दाएं जानिब देखा। उसकी चारपाई खाली थी। वो घबरा कर उठ गई।
उसने आसपास चारपाई के नीचे झांका। नन्ही बच्ची शायद करवट बदलते हुए नीचे गिर गई होगी, मगर वह तो इतनी छोटी थी कि अपनी मर्जी से करवट भी नहीं बदल सकती थी। उसकी बीवी शदीद परेशान हो गई। उसने पूरे घर को छान मारा, उसकी बेटी कहीं भी नहीं थी। नासिर अपनी चारपाई पर अभी तक बेखबर सो रहा था। उसकी बीवी आगे बढ़ी और उसे बुरी तरह से झंझोड़ डाला। नासिर, जल्दी उठो, हमारी बेटी घर में नहीं है। वह रात मेरे पास ही सोई थी, मगर अब कहीं नहीं मिल रही। नासिर बीवी की आवाज सुनकर उठा। नासिर ने उसकी परेशान आवाज सुनी तो एक ठंडी सांस लेता हुआ उठ बैठा। उसने हाथ पकड़कर बीवी को अपने साथ चारपाई पर बैठाया, जिसका दिल धक धक कर रहा था। नासिर ने दिल बड़ा करके अपनी बीवी को वह बात बता दी। उसने बता दिया कि वह अपनी बेटी को समुद्र में फेंक दिया है, क्योंकि वह उसका खर्चा उठाने के लायक नहीं था। नासिर की बात सुनकर उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वह बुरी नजरों से नासिर को तक रही थी। वह मान ही नहीं सकती थी कि जिस नरम दिल नासिर ने उसकी जान बचाई थी और उससे शादी करके सहारा दिया था, वह अपनी ही औलाद को समुद्र के हवाले कैसे कर सकता है। मगर नासिर सच कह रहा था। उसकी बीवी का दिल गम से फटने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने सर को नोच डाला। उसका दिल चाहा कि वह नासिर का गला घूंटकर उसे मार डाले। उसकी मासूम बेटी को मारने के बाद वह किस कदर सुकून से जाकर सो रहा था, मगर वह नासिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। नासिर की बीवी अपनी बेटी को याद करके बिलक बिलक कर रोती थी। उसका दिल अब बदल चुका था। नासिर की जानिब से उसका दिल शदीद उचाट हो चुका था। इधर नासिर के बुरे दिन शुरू हो गए। वह जो रिस्क के डर से अपनी बेटी को समुद्र के हवाले कर आया था, अब उसी समुद्र से उसे रिस्क मिलना बंद हो गया। मछुआरा जब अपने काम के लिए दरिया में जाल फेंकता तो दरिया से कोई भी मछली मछुआरे के जाल में ना फंसती। रोजाना यही होने लगा। नासिर मुंह अंधेरे जाल लेकर निकल पड़ता, मगर इसके बावजूद रात में जब वापस आता तो खाली हाथ लौटता। एक मछली भी उसके जाल में ना फंसती। उन पर फाकों के दिन आ गए। मछुआरा बड़ा परेशान हुआ। ऊपर से 4 दिन की भूख से वह लोग तड़प गए। मछुआरे ऐसे ही कश्ती में बैठा सोच रहा था कि पानी में थोड़ी सी सरसराहट होती महसूस हुई। लगता है यहाँ कोई मछली है। मछुआरे ने जल्दी से अल्लाह का नाम लिया और जल्दी से जाल पानी में फेंक दिया। जाल भारी हो रहा। नासिर का दिल खुशियों से भर गया। उसे यकीन था कि आज कोई बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है, जिसे बेचकर वह ज्यादा रकम कमा सकता है। वह बहुत मुश्किल से जाल को ऊपर खींच रहा था। जाल में फंसने वाली मछली अपना पूरा जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, मगर नासिर भूख का मारा हुआ था। वह मछली उसके लिए किसी नेमत से कम ना थी। जाल को ऊपर खींचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। जाल के अंदर एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी। नासिर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली ना देखी थी। उसके मुंह से खुशी से चीख निकल गई। उसने जल्दी से मछली को बाहर निकाला और उसे टोकरी में लेकर घर की जानिब दौड़ने लगा। वह दोगुनी रफ्तार से भाग रहा था। जल्द ही वह अपने घर पहुंच गया। घर जाते ही उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई और एक बड़ा सा चाकू लाने के लिए कहा। बीवी खामोशी से उसके लिए चाकू ले आई। वह देख रही थी कि अरसे बाद आशियार को समुद्र में एक बड़ी मछली मिली है। नासिर ने चाकू पकड़ा और फौरन से मछली का पेट चीरा। वह इतना भूखा था कि उसने मछली को फरोख्त करने का इरादा तर्क कर दिया। बस वह यही चाहता था कि जल्दी से उस मछली को काटकर उसे खाया जा सके। जैसे ही मछुआरे ने मछली काटी तो अचानक अपनी जगह से उछल पड़ा। मछली का पेट चाक होते ही अंदर से एक अजीब चीज उबलकर बाहर आ गिरी। वह कोई चीज और नहीं बल्कि नासिर की बेटी थी, जिसे नासिर ने समुद्र के हवाले कर दिया। बच्ची बेहोश थी, मगर उसकी सांसें चल रही थी। नासिर अभी भी बेयकीन था, मगर यह मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने यह सब कुछ कैसे किया? इतने दिन गुजरने के बावजूद आखिर बच्ची जिंदा कैसे थी? नासिर यह सोच रहा था कि अचानक उसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम याद आए, जिन्हें मछली ने जिंदा निगल लिया था और 40 दिन के बाद ने उन्हें समुद्र में वापस उगल दिया। वो जिंदा सलामत मछली के पेट में इतना अरसा सांस लेते रहे, यह भी अल्लाह ताला ही का मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने उस मछुआरे की बेटी को इतना अरसा मछली के पेट में जिंदा रखा। शायद अल्लाह पाक नासिर को सबक सिखाना चाहते थे। अल्लाह की बड़ाई उसके सामने थी। जिस औलाद से वह जान छुड़ा रहा था, अल्लाह ने ऐसी हालत में उसके सामने खड़ी की कि उसको अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल था। उसने अपने गुज़श्ता दिनों को याद किए, जब वह रोटी के एक लुक़मे को भी तरस गया था। वह जानता था ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने रिस्क के डर से अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। नासिर और उसकी बीवी अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए। मछुआरे ने रो रो कर अल्लाह पाक से दुआ मांगी,
اے اللہ رب العزت، جتنے دن میری بیٹی دریا میں رہی اتنے دن تک میرے ہاتھ کا رزق تنگ ہوتا گیا اور میرے جال میں ایک مچھلی تک نہ پھنسی۔ اے رب العزت، واقعی تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ پھر مچھوارے نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کی پرورش دونوں میاں بیوی کرنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ مچھوارے نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا اور مچھواری کی بیٹی اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ مچھواری کی بیٹی ایک اچھی ڈاکٹر بنی اور اپنے باپ کا سہارا بن گئی۔ پھر اس مچھواری کی بیٹی نے ایک عالیشان گھر خریدا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ اللہ حافظ۔